Hello guys, good morning. Okay, so we have algebra part 3 for XAT here. Okay, algebra part 3 for XAT. Okay, so I'll be focusing in this class. I'll be focusing more on we'll be focusing on what we'll be focusing on a sequence and series part. Okay, sequence and series part here. Okay, so practice shows a good concept from sequence and series chapter. Okay, so let's see guys, let's start off. Yeah, for example, let's say okay, so what happens actually, see, suppose we have this kind of funda actually. Okay, so let's say we have yeah, so let's say we have a common series like this, 1 3 5 7 9, like this we have a series. So if I try to calculate what is the nth term here, right, what is the nth term here, so nth term will be 2n minus 1, right? It's all odd numbers starting from 1, so I can directly observe that my what is my nth term, it is 2n minus 1. Okay, then if I take this kind of series here, okay, you can quickly observe, suppose we have a series like this, 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5, like this. Okay, so you can observe what is nth term here, right? 1 2 3, so nth term will be n. Now into multiplied by 2 more, hai na? 1 2 3 2 2 4 3 2 5, right? It should be what? It should be n into n plus 2. It should be n into n plus 2, right? Similarly, if we have let's say we have series like 2 10 30, we have series like 68, we have series like let's say 130, like that, na? So if I observe what is the series actually, so if you observe it, what is the series? This series is n cube plus n series, that is 1 cube plus 1, 2 cube plus 2, like that. Okay, this is n cube plus n. So what we're trying to observe this here, right? What is this series actually? This is what this is, n is square plus 2n. Okay, so what we're trying to observe here is, while calculating nth term, this is a linear nth term, right? This is a quadratic nth term, and this is a cubic nth term, right? That's the basic difference between all these nth terms actually, right? So if we observe here 1 3 5 7 and 9, okay, so how do we get that the linear, this nth term is linear, nth term is quadratic, nth term is cubic, right? How do you get these points? So difference between these two terms is actually 2. Okay, so difference between terms are actually 2. That's why these have got linear nth term actually, right? So 2 means what I want to say by 2 is that in first, when you take a difference actually, in first order difference becomes equal, right? In first order difference becomes equal, that means it is linear, hai? If you take up these terms here, this is what, this is 3, this is 8, this is 15, what is next term will be 4 into 6 20. If you take a difference here, 3 and 8 difference is 5, then 8 and 15 difference is 7, then 15 and 24 difference is 9, right? What is the difference here? 2 and 2, right? This is called first order, this is called second order. So what you observe that in second order difference is equal, in first order difference is not equal, right? So if in second order difference is equal, then it is what? Then it is quadratic equation. Okay, then it is quadratic equation. If in second order difference is equal, then it is quadratic equation, nth term, right? Similarly, if you observe here, in nth term it will have, right, in third order the difference would be equal here. If you observe it, right, you will see here 2 to 10 difference is 8, here difference is 20, here difference 38. This is first order, right? If you move to second order, difference of 12, difference of 18, difference of 24, right?
then difference of 6, then difference of 6. It's first order, second order and third order. So in third order difference is equal, right? So its nth term is what? Its nth term is a cubic equation, right? So what we observe from this point actually, we observe that we observe that 1 3 5 7 9 so what we tend to observe here, this, if the nth term, right, if nth term, okay, is linear, if nth term is linear, when it will be linear, when first order difference is equal, right? What is general form? Its general form will be what? A n plus b. A n plus b will be the general form actually, right? If nth term is quadratic, if nth term is quadratic, okay, what is general form? If nth term is quadratic, what is the general form? A n is square plus b n plus c, right? This is the general form actually, right? Means when nth term is quadratic, when second order difference is equal, okay, then it is a quadratic equation. And similarly, if I go like this, if nth term is cubic, right? If nth term is cubic, what is general form? A n cube plus b n is square plus c n plus d. This is the general form of nth term, right? So in exam, we are most likely to ask this question around what? You are most likely to ask this question of this part actually, okay, quadratic actually, because in limited time, we can solve this around in 2 to 3 minutes, okay. This will be quite lengthy for example, this will be quite lengthy with exam perspective, right? And they won't ask this kind of question actually, okay, and this is very short actually, right? With exam kind of, it's XAT exam kind of perspective, so this is most probable, the second part actually, okay. So okay, let's see some questions on this, right? To understand this pattern here, okay. Suppose we have a question, let's say we have got 7 plus 15, okay, plus 39 plus 79, okay, plus 125, right? 24 40, yeah. And this I need to calculate till, let's say, 30 terms, okay. This I need to calculate till, let's say, 30 terms actually, okay. So if I want to calculate these value till 30 terms, what is the sum till 30 terms, okay. So what is the sum till 30 terms? So sum till 30 terms is how much? 7, 15, 39, 79, 125, like 30 terms, right? So what I'll observe here is this 7, 15, 39, if I observe it, right? So difference in first order is 8, then 24, and then 40 and all, and then here 56, and difference in second order is what? 16, okay, 16 and again 16, okay. So difference in second order here is 16, 16 and 16, right? So that basically means what? That in second order, this is first order and this is second order. In second order or in second time we're taking difference, right? The difference is equal. That means its nth term, right? That means its nth term is a quadratic equation. Okay, its nth term is a quadratic equation, right? I should write here actually. Just go behind na quadratic equation, right? So I'll write, okay, so I'll write that, okay, it's nth term, the general form is what? A n is square plus b n plus c, right? Now here a, b and c are three variables for me, right? A and b and c are three variables for me. I need to generate three equations to solve it, right? What is first equation? I'll put n equal to 1. What is n equal to 1? N equal to means t1. What is t1, guys? So t1 will be what? T1 will be a, n equal to 1. If I put here, it becomes a plus b plus c, right? So a plus b plus, what is t1 here? T1 is 7. First term is 7 is equal to 7.
ठीक है. Then n is equal to 2. If I move to n is equal to 2, okay, that is t2. What is t2 actually, right? So t2 is what? T2 is 15. How do you get t2 here? If you put n equal to 2 here, you get 4a plus 2b plus c is equal to 15. Then you put n equal to 3 here. What happens if you put n equal to 3 here? If you get t, because I have to solve for a, b and c, so I'll try and generate 3 equations here, right? What is t3 here? T3 is some 9a, no? Okay, 9a plus 3b plus c. What is t3 here? T3 is 39. Okay, so I want to solve these equations actually, right? So quite easy we can solve it quite easily. This is my equation 1, this is my equation 2, and this is my equation 3. If I want to solve first two parts, quite easy, right? Because it's a very monotonous kind of equation, right? Obviously always the coefficients of b will be in AP, because you're putting 1, 2 and 3, and b has got coefficient n, so 1, 2, 3 like that, right? So always b's coefficient will be in AP. Okay, and this is 3 here, right? So if I solve this first and second part, if I cancel it, this will get cancelled. Okay, what I'll get here? 4a minus a is 3a, and 2b minus b is b. 3a plus b is equal to 8. Okay, then I'll solve this. 5a plus b is equal to 24. Okay, so again now we can solve this. This is my, let's say, equation 4. This is my equation 5 actually. Okay, and again I can solve these two equations actually, right? If you subtract it, I'll get 2a, no? So difference here is 5a minus 3a, 2a. 2a is equal to 16, therefore a is equal to 8, right? So what value I got here? I got value of a is equal to 8, right? Similarly, if I try to put some other values also, I can get it, right? What is the value after this? If I put a equal to 8 here, so 3a plus b is equal to 8. So if a is 8, this part becomes 24, right? So what is b is equal to what? Minus 16. b is equal to minus 16, right? Once b equal to minus 16, and then if I want to solve for c also, so 8, a is 8, b is minus 16, so this becomes minus 8 plus c. So what is c? C is equal to 15 then, right? So 15 is the value of c. That means what is my nth term here? So guys, my nth term will be, okay, my nth term will be, yeah, so my nth term will be how much now? So my nth term becomes so my nth term is equal to how much? It is equal to n square plus bn plus c. What is my a value here? So my a value here is 8, right? It becomes what? It becomes 8n square minus 16n plus 15, right? Just check if it have any calculation mistake here, right? Means by putting n equal to 1, I should get my first term, na? So n equal to 1, I'm getting first term, that's fine. Minus 8 plus 15 is 7. If I put n equal to 2, I should get my second term. So 2 square is 4 into 8, 32, minus 32, 0 plus 15, 15, right? So that's fine. I'm getting, so this is my nth term actually. Okay guys, any doubt till now? Batao? Anybody having any doubt? Hi Shah, good morning. Hello Ankit. ठीक है, तो if you solve these values here, ठीक है, so what value will get here? अब देखो इसको solve कैसे करते हैं ना, तो what is my tn? अंकित ग्रुप में मैंने भूल गया, अंकित ग्रुप में लिंक शेयर कर देना G3 वाले में भी, ठीक है, किसी को देखना होगा तो देख लेंगे वो लोग. आई फॉरगॉट टू शेयर. तो यहाँ ये nth टर्म है, राइट? सो nth टर्म इज 8n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 15. ओके, तो अच्छा अब देखते हैं, राइट? लेट्स सी हियर. तो अब देखो, once you have got this nth term as 8n square minus 16n plus 15, ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे 30 टर्म्स तक ऐड करने हैं, राइट? तो होता क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ nth टर्म.
ऑब्वियसली ना, ठीक है। मैं एन एट टर्म को 1 to 30 तक ऐड कर दूंगा, राइट। सो एस एन इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा टी एन, राइट। व्हाट इज एस एन ईयर? सो सॉरी, व्हाट इज टी एन ईयर? टी एन इज 8n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 15, ठीक है। और ये सिग्मा की वैल्यू होगी यहाँ पे, सिग्मा फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 to टी इज इक्वल टू 30। मुझे 1 to 30 तक इसको ऐड करना था, राइट। अच्छा, अगर मुझे इसको 1 to 30 तक ऐड करना था तो बेसिकली वैल्यू क्या चला जाएगा, सोचो। I'll get the value as what? Sn is equal to, now क्योंकि 8n स्क्वायर है ना, राइट। सो जस्ट वी कैन सेपरेट इट, राइट। समेशन फ्रॉम 1 to 30, 8 को बाहर ले लो, आ जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 16 बाहर ले लिया, समेशन ऑफ 1 to 30 टू n एंड प्लस 1 to 30 समेशन ऑफ 15, ठीक है। नाउ व्हाट इज n स्क्वायर समेशन? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 minus 16 into n plus 1 divided by 2 plus what is this 1 to 30 15 means what? 15 is added 30 times, है ना। तो ये आपका हो गया 15 into 30 हो गया, राइट। तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। टेक n into n plus 1 by 2 कॉमन, ये कॉमन लेना, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे आप? सब वन से ओपन into f, you can simply put n is equal to 30, ठीक है। You can simply put n is equal to 30 to solve this equation. You'll get the answer. Okay, so I hope it is clear, this funda. So one such kind of question we can do always by this, if we have to find the nth term in general. Okay, और फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, है ना। Let's practice few questions. देखो, S1 is a series given as 1 into 30 plus 2 into 29 plus 3 into 28 plus till 30 into 1, ठीक है। And S2 is a series here, right? S2 is a series here, 1 into 60 plus 2 into 59 plus, okay, 3 into 58 plus 60 into 1, okay. So we need to find the value of twice of S2 by S1. Twice of S2 by S1, what is the value? Okay, let's solve this. ओके, सॉल्व देखो करते हैं इसको, है ना। तो वैल्यू व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट हियर इज, वी हैव गॉट S1, देखो व्हाट इज S1 ना, 1 into 30 plus 2 into 29 plus 3 into 28 till 30 into 1 we have, right? So if I am trying to find the value here, so S1 S2 है ना, S2 upon S1 है, right? So if what is S1 now, सोचो क्या है बेसिकली, तो इसका nth term इसका what is the nth term, है ना। So 1 into 30, 2 into 29. So however, observe, what you can observe here is, okay, that this 1 plus 30 is always 31, 2 plus 29 is 31, 3 plus 28 is 31, ठीक है। It is going like that actually, ठीक है। So what you can put here S1 as, S1 is summation from 1 to 30, ठीक है, that is n into 31 minus n, ये हो जाएगा, है ना।
n into 31 minus n, right? Because if n equal to 1 it is 30, if n equal to 2 it is 29, right? So that's why I told ना, हमेशा सम क्या है, तो ये आपका जो वैल्यू है ना, ये हमेशा 31 है, right? So this is sum is always 31. So sum of these two terms is always 31. So if one term is n, other term should be what? 31 minus n. Okay. Now this is equal to, right, summation of 1 to 30 है ना. Now you can solve it, right? It becomes 31n minus n square. ठीक है. You can split into two terms actually, right? Okay, and it becomes what? This becomes summation of 1 to 30 है ना, of 31n minus summation of 1 to 30 of n square. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, राइट. अब क्या आप करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में, इससे सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 31n है ना. दिस बेसिकली मीन्स व्हाट नाउ, ठीक है, मीन्स व्हाट, 31 था यहाँ पे, तो 31 बाहर ले लिया आपने. 1 to 30 summation n, that is n into n plus 2, sorry, n into n plus 1 by 2. Okay, n into n plus 1 by 2, ठीक है, माइनस n स्क्वायर. ठीक है, 1 to 30 n स्क्वायर है यहाँ पे, that means what, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. This is the value here. ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या हो गया, आप n को 30 पुट करोगे, राइट. नाउ यू वांट टू पुट n इक्वल टू 30 हियर, तो वैल्यू विल गेट हियर इज 31 इंटू 30, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ है ना, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस हियर, राइट. सो लेट मी राइट हियर ओनली. सो 31 इंटू 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप n को यहाँ 30 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 6. ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 31 बाई 30 इंटू 31 बाई ये वाला पार्ट. ठीक है, हम ले सकते हैं यहाँ से कॉमन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3. सो लेट्स टेक 30 इंटू 31, 30 इंटू 31 बाई 6. लेट्स टेक कॉमन एक्चुअली. तो अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, ठीक है अंकित, देखता हूँ, 30 इंटू 31 बाई 6. हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर अंकित. ठीक है, अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, बेसिकली 30 इंटू 31 कॉमन है, नीचे 6 ले लिया ना, तो यहाँ पे 61 बचा, राइट. और यहाँ से क्या बचा मुझे, 31 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 है ना, तो ये हो गया आपका 93 हो गया, राइट. दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 30 इंटू 31 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6. ये आ रहा है वैल्यू, 30 इंटू 31 इंटू 32 डिवाइड बाई 6 वैल्यू आ रहा है. ठीक है, ये आपकी S1 की वैल्यू हो गई, राइट. नॉट वी नीड टू थिंक अबाउट H2. व्हाट इज H2, तो निकल जाएगा सिमिलरली 1 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 59 प्लस 3 इंटू 50 निकल जाएगा, राइट. So if I want to calculate the value of H2 here, what is H2 we will have now? So H2 is equal to what, right? Similarly we have H2 as n equal to 1 to we have 61 है ना, and this should be what, because sum of all terms is 61. यहाँ basically क्या हो जाएगा, it will be n into 61 minus n. ठीक है, if it is n into 61 minus n, so we can solve it here, right. ये बन गया बेसिकली व्हाट, इट बिकम्स n इक्वल टू 1 to 61 एंड वी हैव 61n माइनस n स्क्वायर, है ना. दिस वैल्यू आई विल गेट हियर 61 माइनस n स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस बिकम्स व्हाट, सो लेट्स सॉल्व इट, राइट. n इज इक्वल टू 1 to 61 है ना, 61n माइनस n इक्वल टू 1 to 61 विल हैव n स्क्वायर. इफ आई फर्दर वांट टू सॉल्व दिस बिकम्स 1 to 61. ठीक है, तो अगर 1 to 61 ये सॉल्व हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, 1 to 61. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा n5, हाँ, तो यहाँ का बन जाएगा 61 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दैट इज 61 इंटू 62 बाई 2. ठीक है, अच्छा यहाँ पे n इक्वल टू 1 to 60 ऐड ना, 60 क्यों 1 क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं, 60 ऐड करेंगे ना, should be 60 है, राइट. 60 टर्म्स है ना, यहाँ से 60 बन जाएगा, सॉरी, है ना.
माई मिस्टेक। ओके, तो ये 61n माइनस 1 to 60n स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या बन रहा है आपका 61 में मैंने n पुट कर लिया यहाँ पे, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 60 इंटू, तो बेसिकली क्या चल रहा है ना, सो इफ आई गिव इट 61, मैंने यहाँ बाहर ले लिया ना, 61 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, हाँ, माइनस ये पार्ट हो गया आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये पार्ट हो गया आपका, राइट। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू पुट n इक्वल टू 60, यू विल गेट दैट 61 इंटू 60 इंटू 61 बाई 2 माइनस if you put n equal to 60 here, you will get 60 into 61 into 60, sorry, 121 divided by 6. ठीक है, यहाँ से वही काम करेंगे, we'll take 60 into 61 by 6 as common, हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 कितना हो जाएगा 61 into 3 183 183 माइनस 121, राइट। तो ये आपका बन जाएगा, जिससे हम लेफ्ट विथ व्हाट 60 इंटू 61 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई S2 की। हमारी S1 की वैल्यू क्या आई थी, हमारी S1 की वैल्यू आई थी 30 इंटू 31 इंटू 32 बाई 6, ये हमारी S1 की वैल्यू आई थी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए था, आई वॉन्टेड द वैल्यू ऑफ व्हाट, आई वॉन्टेड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ S2 अपॉन S1, राइट। I want the value of twice of S2 upon S1. So what is value becomes actually twice of S2. क्या S2 क्या है यहाँ पे 60 इंटू 61 इंटू 62, ठीक है, डिवाइड बाई 30 इंटू 31 इंटू 32, ठीक है। तो ये वैल्यू को क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, दिस बिकम्स व्हाट 60, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड, 30 and 31 2 times, 31 2 times, ठीक है, 61 और फिर नीचे है ना 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 4 या 32, ये आपका आंसर आ गया 61/4, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट, इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ओके। Okay, let's see this the next question, guys. The next question है, now x is equal to 1 by 90 into 46, हाँ, plus 1 by 89 into 47, ठीक है, प्लस चलता है ऐसे ही, राइट, लास्ट टर्म इज 1 by 46 into 90, ठीक है, दिस इज x, हाँ, एंड देयर इज y ऑल्सो हियर, y इज अ सीरीज ऑफ 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus this will go minus 1/90, ठीक है। what is the value here, ठीक है, so what is the value of I want x by y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करो, तो पानी पी के आता हूँ मैं।
Okay, let's solve it. Okay, this is actually quite similar to last question, yeah, but it's a reciprocal part, right? तो reciprocal part थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना. बट यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो आप, दैट 90 plus, again sum of these two terms is what, 90 plus 46, sum is 136. Again what is sum here, 136, right? What is sum here again, the sum is 136, right? The sum of two terms in reciprocal is what, 136, right? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप क्या करोगे बेसिकली, राइट? सो इफ यू हैव सम ऑफ टू, सो सी हाउ टू सॉल्व, लर्न दिस, राइट? शुड लर्न हाउ टू सॉल्व सच सीरीज एक्चुअली, राइट? तो जब सम 136 है, राइट, तो यू कैन टेक 1/136 कॉमन, ठीक है? यहाँ बाहर में कॉमन ले लो, ठीक है? सम इफ सम इज 136, राइट? सो व्हाट विल गेट हियर, सो आई विल गेट 136/90 into 46, ठीक है, प्लस 136/89 into 47, ठीक है, एंड दिस विल गो ऑन, ठीक है, प्लस 136/46 into 90, ये चलता जाएगा, ठीक है? अब इसको आप स्प्लिट कर लोगे ना, यू कैन स्प्लिट दिस इजली, राइट? नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट हियर, ठीक है? व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक दिस पार्ट, हाँ, तो ये पार्ट बेसिकली क्या हो जाएगा समझना, तो 1/90 into 46 है, राइट? तो अगर ये 1/90 into 46 है, हाँ, और यहाँ ऊपर है 136 है, दैट इज सम एक्चुअली, राइट? तो इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, राइट? सो कैन आई राइट दिस वैल्यूज लाइक दिस हियर, राइट? सो यू कैन राइट दिस एज 1/136, है ना? अगर मैं इसको लिखूँ 1/136 हियर, राइट, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसको स्प्लिट करने में क्या बनेगा, ये 90 और ये 46 है ना? तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/, देखो लास्ट टर्म यहाँ 46 into 90, 90 into 46, राइट? तो अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 1/46 प्लस 1/90, ठीक है? व्हाट इज सेकेंड टर्म हियर, देन 1/47 प्लस 1/89. व्हाट इज थर्ड टर्म हियर, चलता जाएगा ना, प्लस 1/90 इंटू प्लस 1/46, लिख सकते हो ना ऐसे, राइट? जैसे स्प्लिट कर दिया ना, मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, देखो मैंने ऐसे किया है, ये 136 है ना, तो मैंने क्या किया इसको, आई हैव रिटन हियर लाइक 90, आई हैव रिटन हियर लाइक 90 plus 46 upon 90 into 46. तो स्प्लिट करोगे ना, 90 upon 90 into 46, ठीक है? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1/46 बन जाएगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पे स्प्लिट करोगे आप, प्लस 46 upon 90 into 46, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/90 बन जाएगा ये, ठीक है? तो ये बेसिकली ये पार्ट आ गया, इसको अरेंज कर देते हैं ना, लेट्स अरेंज इट, राइट? तो ऑब्वियसली 1/46 इज अकरिंग 2 times, 1/90 is also occurring 2 times, right? तो बेसिकली क्या लिखोगे आप, you'll write this x as, okay, you'll write this series x as, आप x को क्या लिखोगे, ट्वाइस हो जाएगा ना, 1/46 प्लस 1/46 ट्वाइस हो जाएगा, तो पहले 2 कॉमन ले लो, 2 upon 1/36, राइट? दिस बिकम्स व्हाट, 1/46 प्लस 1/47 प्लस 1/48 till 1/89 प्लस 1/90. ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, तो नाउ फोकस ऑन वाई सीरीज, ठीक है? अभी हम फोकस करेंगे वाई सीरीज पे, ठीक है? तो देखो वाई सीरीज में क्या हो रहा है, 1 minus 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे चल रहा है सीरीज, राइट? इफ यू ऑब्जर्व हियर वाई सीरीज, ठीक है, हम वाई का क्या करें, ठीक है? लेट्स कम टू वाई सीरीज. इफ आई कम टू वाई सीरीज, दिस इज गोइंग लाइक 1 minus 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 चलता जाएगा ये, हाँ, ये बेसिकली आपका जा रहा है -1/90 तक, माइनस, तो ये ना प्लस माइनस जो से है ना, ये आपका प्लस माइनस वाला सीरीज है ये, राइट? तो हाउ डू सॉल्व सच प्लस माइनस सीरीज, कैसे सॉल्व करते हो आप, ठीक है? तो अब क्या करोगे, इसको ना एक पूरा प्लस में कन्वर्ट कर लो, राइट? तो ऐसे लिख लो इसको, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 टिल 1/90, तो कैसे लिख लिया, ठीक है?
अब ये माइनस था ना, मुझे -1/2 चाहिए, सो माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ट्वाइस कर लेना ऑल द इवन टर्म जहाँ माइनस था, 1/2 + 1/4 इट गोज टिल 1/90। समझ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं? तो इवन टर्म से माइनस है राइट, 1 के बाद -½ है, तो इवन टर्म ऐसा हाफ आ जाएगा ना, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और -2 × हाफ बन गया ये आपका -½ ये क्या है आपका 1/4 और -2 × 1/4 ये क्या बन गया -1/4 बन गया राइट। तो सारा इवन टर्म्स पे ऐसे हाफ हो गया। तो बेसिकली देखो, बेसिकली क्या चला ये, नाउ इट इज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 टिल 1/90, ठीक है, और माइनस अब 2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा ये आपका 1 + 1/2 + 1/3 टिल 1/45। तो ये माइनस है ना राइट, तो ये सारा टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 विल गेट कैंसिल्ड हियर टिल 1/45 है ना, टिल 1/45 कैंसिल हो जाएगा टिल 1/45। सो व्हाट आई एम लेफ्ट हियर इज विथ 1/46 + 1/47 + 1/48 टिल 1/90, ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। So what's the value of x plus y, guys? Okay, so what's the value of x plus y we have? So x series we got as what? X series we got as 2/136 into 1/46 + 1/47 till 1/90। यह तो मेरी x की वैल्यू आई थी। What value of y I got here? I got y value as 1/46 plus 1/47 प्लस टिल 1/90, ये मुझे y की वैल्यू आई थी, ठीक है। इसको डिवाइड कर दूंगा ना, मुझे x by y की वैल्यू चाहिए, आई वांट वैल्यू x by y, दिस होल विल गेट कैंसिल। व्हाट इज आंसर? आंसर इज 2/1/36, दैट इज 1/68। दिस इज द आंसर। बोलो, एनी डाउट? कोई डाउट है यहाँ पे? बोलोगे संडे मॉर्निंग क्या करा रहा हूँ मैं, है ना, संडे के मॉर्निंग में क्या है ये सब? ओके, लेट्स सॉल्व वन और मोर few more good questions. Okay. विवेक तुम तो अब तो विवेक आप तो ऐसे भी इंटेलिजेंट हो, सब आता ही है आपको। मैं बाकियों से पूछ रहा था, बाकी लोग क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो एक और आते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। S इज इक्वल टू 60 × 1 + 59 × 2 + 58 × 3 प्लस टिल 1 × 60, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ S? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ S। ये कैलकुलेट करते हैं। करता हूँ, है ना। लेट मी सॉल्व दिस राइट। अभी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। टेल मी द आंसर।
बहुत सिंपल है ये तो, है ना, अभी जस्ट सॉल्व किया राइट। ये क्या हो गया हमने, तो एस की वैल्यू क्या हो गया, अगेन 60 + 1 61 61 61 चल रहा है ना। एस की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 61, क्या होगा हमारा एन टर्म, सम ऑफ टू टर्म 61 है, तो अगर एक टर्म को लोगे आप एन, तो अगले टर्म को क्या लोगे आप, हाँ अगले टर्म को आप क्या लोगे, आप लोगे उसको 61 माइनस एन लोगे, है ना, एन इंटू 61 माइनस एन राइट। इसके लिए क्या बन गया, बेसिकली ये बन गया 61 इंटू एन इक्वल टू 1 से लेकर 60, ठीक है, माइनस एन, एंड फिर एन इक्वल टू 1 to 60 एन स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 61 इंटू 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 माइनस 60, एन इंटू प्लस 1 है ना, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 राइट, अपॉन 6, 60 इंटू 61 इंटू 121 डिवाइड बाई 6, है ना। सॉरी सैटरडे में संडे बोलते ना, सैटरडे मॉर्निंग, सॉरी मैं संडे मॉर्निंग क्या करा रहा हूँ, ठीक है। तो 60 इंटू 61 21/6 राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको टेक दिस एज कॉमन राइट। तो मुझे क्या चाहिए, इसको सॉल्व करना है, हाँ, तो अगेन टेकिंग दिस पार्ट, हाँ, सिक्सटी इंटू 61/6 आई कैन टेक एज कॉमन, ठीक है, 60 इंटू 61/6, तो ये बन जाएगा मेरा 183 माइनस 121, है ना। ये क्या बन जाएगा मेरा 60 इंटू 61/6 इंटू 62 बन जाएगा, करेक्ट। इसको 10 टाइम्स राइट, ये आपका बन गया 61 इंटू 62 इंटू 10, कितने फैक्टर्स होंगे इसके, 61 इज प्राइम नंबर, 62 इज 2 इंटू 31, 2 इंटू 5 है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फैक्टर्स कितने हो गए, फैक्टर्स हो गए पावर 1 पावर 1 पावर 1, इसके फैक्टर्स कितने हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, वी हैव गॉट 24 फैक्टर्स, 24 फैक्टर्स इज द आंसर, करेक्ट। आरुषि, आरुषि भी हो, जग गए आरुषि इतना जल्दी, कल इतनी रात में हमने डीएम का क्लास खत्म किया था, 1 बजे के बाद भी हमने ख़त्म किया था ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वी हैव गॉट हियर -7 -25 तो एक बार हाई तो लिख दिया करो, मुझे पता नहीं चलता कौन कौन है ऑनलाइन। चलो ऑनलाइन स्टार्टिंग में आते तो हाई लिख दिया करो, ठीक है। इसका सम फाइंड करना है, फाइंड इज सम, आरुषि नींद में हो गए, नींद में हो गए, नींद में दिख ही नहीं रहोगे, चैट कहाँ पे, अरे माइनस साइन है अंकित, अंकित का तो नींद नहीं खुला अभी तक, माइनस साइन है, -7 -25 -61 -121, इन सबको ऐड करना है -3361 तक। कॉमन क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन ही दिया मैंने, छोड़ो क्या फर्क पड़ेगा। सॉल्व करें इसको,
चलो इट्स सॉल्व इट ना. चलो तो क्या करें, वैसे यहाँ पे विल टेक -7 है ना, ठीक है. तो -7 है आपका, राइट. तो आप बेसिकली क्या करोगे यहाँ पे, टेक माइनस, पहले सम निकालना है, टेक माइनस एज कॉमन एक्चुअली, ठीक है. यू टेक माइनस एज कॉमन, ठीक है. ये क्या बन गया आपका, 7 + 25 + 61 + 121 + 3361, ठीक है. 7, 25, 61, 121, ये आपका आ गया टिल 3361, है ना. जब ये सीरीज बेसिकली क्या है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, व्हाट इज सीरीज यार. ऑब्जर्व करो सीरीज क्या चल रहा है, ये बताओ. ये जस्ट ऑब्जर्वेशन सीरीज क्या चल रहा है, बताओ. ये सीरीज क्या है, 7 है, 25 है, 61 है, सीरीज क्या है ये बताओ. देखो हमेशा हाँ ध्यान देना, ठीक है. व्हाट इज द 7 ईयर, 7 इज 2³ - 1. व्हाट इज 25 ईयर, 3³ - 2. ओके. व्हाट इज 61 ईयर, 4³ - 3. व्हाट इज 121 ईयर, देख रहे हो ना, 5³ - 4. चल जाएगा, राइट. ये कहाँ पे आएगा, 15³ इज व्हाट, 15³ इज 3375. यहाँ का ये कहाँ पे आएगा आपका, 15³ - 14, ठीक है. ये आएगा आपका 15³ - 14. तो यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करना था, राइट. इफ़ यू कुड डू इट डायरेक्टली तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ साइन फिर तो क्वेश्चन में, ठीक है. ठीक है. सीरीज में ना हमेशा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सीरीज क्वेश्चन यू नीड टू ऑब्जर्व अ लॉट एक्चुअली. ओके. तो ये आपका बन गया माइनस, इसको लिख लो अलग ना, माइनस ऑफ 2³ + 3³ + 4³ हाँ, टिल इट विल गो टिल 15³ ठीक है. एंड देन माइनस ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 टिल 14, राइट. अभी बेसिकली क्या करोगे यहाँ पे आप, तो यू कैन सॉल्व इट, राइट. बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली टर्म्स तो नहीं है, हाँ, n³ के, ठीक है. मतलब 1³ से लेके n³ तो नहीं है, बट इसमें 1³ माइनस कर देंगे, है ना. तो अगर इसमें आप 1³ माइनस भी कर दोगे तो आपका हो जाएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है ना. तो इसमें एक मतलब बेसिकली क्या करोगे आप अपने माइंड में, क्या करोगे यहाँ पे, यू विल ऐड 1³ एंड यू विल सब्ट्रैक्ट 1³. तो 1³ से 15³ तक का सम क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर. तो ये आपका हो गया 15 × 16/2 का होल स्क्वायर. और ये एक -1 रह जाएगा ना, दिस इज -1, ठीक है. एंड देन माइनस यहाँ पे क्या गया, n1 से n तक का सम क्या हो गया, 1 से n तक का सम आपका हो गया 14 × 15 / 2. देखो कितना आ रहा है वैल्यू, देख लो ये कितना आएगा, ये 50 × 16 है ना. ये हो जाएगा आपका 1, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 120 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 14400. तो 14400 -1, तो ये आपका हो गया माइनस साइन होगा ना, माइनस ऑफ 14399 है ना. 120 का स्क्वायर इज 14400 -1 बिकम्स 133 है ना. और फिर आपका ये पार्ट यहाँ पे क्या आ गया, -105 आ गया, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है. तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, अंकित माइनस साइन भी आएगा, माइनस ऑफ 12444. ये सब सिली मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में, माइनस साइन भी आएगा. ठीक है. फिर एक और कर सकते हैं हम लोग, या ये कर सकते हैं. दिस वी कैन डू. एक क्वेश्चन है ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, 30/40 +
50/360 प्लस 70/1440, ठीक है, प्लस 90/4000. आई वॉन्ट दिस टिल 15 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी टिल 15 टर्म्स. बताओ. कुछ है नहीं. हाँ, ये वही वाला केस है ना. इट्स अ केस ऑफ व्हाट, स्प्लिटिंग शॉर्ट डिनोमिनेटर, है ना. तो स्प्लिट डिनोमिनेटर कर सकते हो राइट. यहाँ पे कैंसिल कर दोगे ना. इट्स कैंसिल इट. ये कैंसिल हो गया सारा. ठीक है. तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3/4 आ रही है. 3/1 इंटू 4 प्लस 5 क्या लिखोगे इसको 4 इंटू 9 प्लस 7 लिखोगे आप इसको 9 इंटू 60, है ना. तो ये अगर आप इसको रेसिप्रोकल में लिख रहे हो राइट, सो इट शुड गो लाइक दिस, है ना. इट शुड गो लाइक दिस. ठीक है. प्लस 90/, ये क्या बन गया आपको, ये कंटिन्यूटी में आना चाहिए. तो 16 का क्या होगा 9/16 इंटू 25. बेसिकली अगर ऑब्जर्व करोगे क्या हो रहा है ये, व्हाट आर दिस टर्म्स एक्चुअली. ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर दिस 3 स्क्वायर, दिस 3 स्क्वायर दिस 4 स्क्वायर, दिस 4 स्क्वायर दिस 5 स्क्वायर. तो फोर्थ टर्म में 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है. तो 15th टर्म में क्या होगा राइट. 15th टर्म में क्या होगा, 15th टर्म में होगा आपका ऊपर में क्या है, इट शुड बी 3 5 7 9, है ना. ये क्या चल रहा है ऊपर में, ऊपर में चल रहा है इट इज़ ऑड सीरीज, 2n+1 सीरीज चल रहा है ना. 15 टर्म में क्या आ गया यहाँ पे 31 आ जाएगा 15 टर्म में राइट. तो 15 टर्म विल हैव अ 31 हियर एंड 31 यहाँ लिख देता हूँ, है ना. लेट मी राइट हियर एक्चुअली. ठीक है. सो विल हैव अ 31 हियर राइट. तो ये जो आपका 31 है, हाँ, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा 15 4 टर्म 4 स्क्वायर 15 टर्म हो जाएगा 15 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना राइट. तो ये वाज वी नो हाउ टू सॉल्व इट राइट. बेसिकली क्या फंडा होता है इसका, तो वी नो हाउ टू सॉल्व इट ना. क्योंकि अगर 3/1 1 इंटू 4 है, सो कैसे लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, है ना. तो ये 3 आ गया. तो क्या लिखते हो आप इसको, तो ये राइट इट एज 3 बाहर ले लिया है ना. इसको लिखते हैं 3/1 इंटू 1/1 इंटू 4. फिर क्या करते हो आप, डिफरेंस 3 है इसका, तो 3 इंटू 1/3 बाहर लोगे और क्या लिखोगे इसको 1/1 माइनस 1/4. तो ये कैंसिल हो जाएगा ना. तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1/, दिस बिकम्स 1/1 माइनस 1/4. इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है. प्लस अब 4 इंटू 9 है, इसकी डिफरेंस क्या हो गया, इसकी डिफरेंस 5 हो गई यहाँ पे 5 राइट. तो अब 5 ऑलरेडी ऊपर में है ना, तो ये 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बात हो जाएगी ना. लाइक सेम थिंग राइट. लाइक 5 बाहर लिया, 1/4 इंटू 9 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9, है ना. और हम 1/5 ले लेंगे इसको बाहर में राइट. अगेन 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा 1/4 माइनस 1/9 बचेगा, है ना. दिस विल गेट कैंसल्ड राइट. टीचर हाँ, नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, सिमिलरली 1/9 माइनस 1/16, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस 7 है एंड 7 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, दैट 7 विल कैंसिल इट. ठीक है. तो ये आपका ये भी कैंसिल हो गया राइट. तो सिमिलरली चलता है ना. सो ऑल विल गेट कैंसिल. क्या बचेगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा लास्ट में, बस ये लास्ट टर्म क्या आएगा आपका, इट विल बी लाइक 1/225 माइनस 1/256. ठीक है. तो बस यहाँ पे आपका सिर्फ ये टर्म बचेगा, ओनली फर्स्ट टर्म बचा. व्हाट आई एम लेफ्ट इज 1 माइनस 1/256, दैट इज इक्वल टू 255, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 255/256. दैट्स द आंसर.
हाँ करेक्ट, करेक्ट प्रशांत। ओके चलो फिर फिर टुमारो विल कंटिन्यू अलजेब्रा, है ना? टुमारो विल कंटिन्यू अलजेब्रा अगेन। टुमारो वी हैव 8 to 9 AM, ठीक है। रीडिंग अलजेब्रा पार्ट 4, विल बी डूइंग अलजेब्रा पार्ट 4, ठीक है। कल 8 to 9 AM हम करेंगे अलजेब्रा पार्ट 4, फिर ये कंटिन्यू चलेगा ना। फिर नेक्स्ट डे फिर अलजेब्रा पार्ट 5, ये लगातार 4 days विल कंटिन्यू टिल 31st। साल का एंडिंग ही करना है 8 अलजेब्रा करके, ठीक है। तो टिल 31st डेली वी हैव क्लास फ्रॉम 8 to 9 AM। ओके चलो गाइस, देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। जैट का जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए स्वप्निल? जैट का जीके कोई भी देखो ना, किसी का मॉक लिए हो आपके पास? कोई कोचिंग, कौन सा कोचिंग लिया था आपने? अगर कोई कोचिंग लिया था तो उसका 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 आपके पास होना चाहिए ना। वो उसमें पीडीएफ वगैरह होता है आई थिंक, राइट? तो आपने कौन सा कोचिंग लिया था बताओ? क्रैक्यू? हाँ तो क्रैक्यू में जीके नहीं था क्या? उनका जीके का सेट है, उनका जीके का। अदरवाइज यू कैन रेफर एनी बैंक पीओ चैनल, राइट? कोई भी बैंक पीओ चैनल। हाँ अच्छा ठीक है स्वप्निल, यू कैन रेफर एनी यूट्यूब चैनल विथ बैंक पीओ, है ना? अड्डा 247 ये सब है ना, अड्डा 247 है, वाईफाई स्टडी है, राइट? तो किसी से भी, है ना? तो किसी का भी ले लो, और जो उनका करंट अफेयर चलता है लास्ट 6 months का कर लो, राइट? लास्ट 6 months करंट अफेयर्स वुड बी फाइन, लास्ट 6 months करंट अफेयर्स वुड बी फाइन। ओके my CAT exam was in slot 2. I got a question related to the number of positive roots of a थैंक यू विवेक। प्रशांत बताया तो ना, प्रशांत वेन एवर डिफरेंस इज इन एपी, हाँ तो जब भी प्रशांत डिफरेंस एपी में होगा ना, अभी जब मैंने क्लास का, आई प्रशांत अभी स्टार्टिंग से थे क्या क्लास में? स्टार्टिंग में नहीं बताया था ना, स्टार्टिंग में कि मैंने क्या बताया, जैसे मान लो कि डिफरेंस है ना आपका 7 है, हाँ आपका लेट से 11 है, आपका लेट से 17 है, हाँ देन लेट से यू हैव सम एट 4 6 8 25 है, देन 35, जो जैसे चल रहा है राइट, सीरीज चल रहा है। तो इसका मुझे एन टर्म चाहिए, तो अगर अगर इनका डिफरेंस एपी में है ना, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, राइट? और बेसिकली ये फिर सेकेंड ऑर्डर में, तो अगर एक ऑर्डर में डिफरेंस एपी में है प्रशांत, राइट? इफ दिस इज इन एपी प्रशांत, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, इफ इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन एपी, ठीक है। सो इफ इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन एपी, सो इन सेकेंड ऑर्डर इट हैज टू गेट इक्वल, राइट? you'll get 2 2 and 2। तो जैसे ही सेकेंड ऑर्डर में इक्वल हुआ, तो इसका nth टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा? इट्स nth टर्म फॉर्म विल बी व्हाट? क्वाड्रेटिक, है ना? क्वाड्रेटिक मीन्स an स्क्वायर प्लस bn प्लस c फॉर्म, है ना? फिर निकल जाएगा फिर तो। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है प्रशांत, देखना स्टार्टिंग में, आज के क्लास के स्टार्टिंग में। ओके शुड वी साइन ऑफ? विल बी टुमारो एट 8 AM।
Okay. Sure then, bye bye guys. Have a good day. Thanks for attending morning class. Take care.